So, good morning, viewers. Good morning, students. Today, we are going to cover our percentage problems. So, percentage problems in previous session, we have covered what about the percentage, use of percentage, how we can calculate the percentage, where the different kind of the problems based upon the percentage. So, for the brief about the last session that we have discussed, percentage problems comes into the all kind of the competitive exams as well as all the entrance exams in aptitude part. When we talk about the aptitude part, so aptitude part is a basic core essential for any recruitment test, or we may say that is anything that when we want to eliminate the different kind of the people, yeah, we have to eliminate the some people, so that we have to take the aptitude test. So in first aptitude test, it's a primary level test. In the primary level test, more than 90% student is being eliminated, so it is the important part for the aptitude. So it means today we are talking about the percentage problems. Percentage theory session I have covered in my last session. This time I am going to solve all kind of the problem related with the percentage, related with the percentage. अब percentage की problems बहुत type की होती हैं. Percentage की problem might be percentage की problem आपको मिल जाए algebra से related, maybe percentage की problem आपसे मिल जाए data interpretation से related, maybe presentation की परसेंटेज की प्रॉब्लम आपको मिल जाए लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड. सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू कवर ऑल काइंड ऑफ द प्रॉब्लम इन आवर फर्स्ट एंड second video. So there is one part and part 2 will be in the next video I'll cover. So part 1 that covers is a percentage. So percentage, for the brief introduction of me, I just want to say the brief introduction of me is, my name is Jadesh Malviya. I have the 12-year experience of the training and placements and the training of the competitive exam students and the MBA entrance exam students. Right. So in this way we are going to start our session of problems related with the presentations. Percentage. Here. Yeah. So percentage problem, as I discussed the percentage, today I'm going to cover the 23 problems related with the percentage. Okay, now, so today I'm going to discuss the percentage problems. Which kind of the percentage problems comes into the aptitude test. So percentage means, when we talk about the percentage, तो percentage के बाद में आपको बहुत सारी problems आएंगी, problems related with the any expenses, percentage with any salary, any income, any gain percent, any profit percent, any discount percent. So all kind of the percentage problems we'll discuss today. So this is the 23 questions that will cover all kind of the percentage related problems. So now we start with the first problem, that is the percentage, and the question is, it is visible to all of you people. The person, if I can speak also here, a man spent 35% of his income on the house rent, 75% of the remaining income on other things, other items. What percentage of the income he saved? The question is very simple. तो हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन के बारे में. तो एक सपोज जब भी परसेंटेज की हम बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट 100%. सो 100, वी टॉक अबाउट 100, इट मीन्स हम बात करेंगे 100 की. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द 100x. So मान लीजिए the person income was the 100x initially it was the 100x, and 35% he invest on the house rent. So first is 35x, so rest subtract this 35x, that is a 65x is income, 65% income, 65 is the remaining income, and next line is 75% of remaining on the other item. Other remaining, when we talk about remaining, यदि हम ऐसी बात करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर दें कि 75% तो उसने अदर इनकम, अदर आइटम्स पे खर्च कर दिया, और 35% उसने अदर आइटम पे खर्च कर दिया, हाउस रेंट पे खर्च कर दिया. दोनों को यदि हम क्लब करेंगे तो 75 प्लस 35 इट विल बी 110%. तो 110% जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि परसेंट इज ऑल अबाउट
100. सो अब हम लोग बात करेंगे कि 35% एंड 75%. तो 75% ऑफ 65x हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. 75% ऑफ 65x दैट वी हैव टू कैलकुलेट. 75% मीन्स 75 इंटू 1/100 इंटू 65x. Right, so 75% of 65, it is, suppose this is 25, so 3 here 4 and 65 by 4 x. It becomes 4 ones are 4 and 2, 4 6 are 24, 4 6 are 24 and rest is 25x. So in this way 16.25 he spent on other item. So 35 here, 65 में से बचा 16 माइनस, तो हम करेंगे रिमेनिंग. 35 तो उसने हाउस रेंट पे खर्च कर दिया, 16.25 उसने अदर आइटम पे खर्च कर दिया. इट मीन्स 65 into 3. So here is 75% of 65x that we calculate. So 75% of 65, it means 75 by 100 into 65x. So ये हम कैलकुलेट करेंगे. दिस इज 3/4 एंड इट विल बी, व्हेन वी 4 से 65 को आएंगे तो 16.25 इंटू 3 दैट इज 48.75 he invested on some other, that is x. So remaining बचा कितना? यदि हम बात करें 35 plus 48, 35 को हमने ऐड कर लिया यहाँ पे, दैट इज 8 5 13 कैरी 1 47 7 और 1 8 83.75 ही इन्वेस्टेड समवेयर एल्स. तो 83.75 वो टोटल उसने एक्सपेंस कर दिया. सो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी योर आंसर. 100 माइनस 83% दैट इज द 16.25. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया. तो इस बार इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आती हैं. जिस तरह की प्रॉब्लम्स में कई बार होता है जो एक छोटा सा वर्ड दैट इज रिमेनिंग में हम ध्यान नहीं जाता और कैलकुलेशन में क्वेश्चन गलत हो जाता है. ओके, सो इन दिस वे वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज a man spent 35% of his income on food, 35% income on food, 25% on children's education, and 80% of remaining on the house rent. What percent income he left with? It means कितना percent income इसने save किया. The question is कि how much money he has save. Means suppose कि इधर अगेन वही सेम प्रॉब्लम, 100x की उसकी टोटल इनकम, 100x में से यदि हमने 35x उसने खर्च कर दिया ऑन पर्टिकुलर आइटम ऑन फूड, तो 35 फूड पे, 25x ही स्पेंडेड ऑन द चिल्ड्रन एजुकेशन, तो एजुकेशन पे चला गया और ये चला गया आपका फूड पे. और बचा, अब हम सबसे पहले यहाँ रिमेनिंग से पहले कैलकुलेट कर लेंगे. 35 प्लस 25 इट इज 60%. 60x ही हैज इन्वेस्टेड ऑन 2 आइटम, फूड एंड एजुकेशन. अब बचा आपके पास 60x तो चला गया, तो 100 माइनस 60x रिमेनिंग इज 40x. इस 40x को, दिस 40x, अब क्वेश्चन है कि 80% ऑफ रिमेनिंग हाउस रेंट. सो 40x का 80% कितना होगा? 80% ऑफ 40x, इट मीन्स दैट इज, आई टोल्ड यू 10% is 4 and 80% will be 32x. 32x will be another item, that is the remaining on house rent, HR house rent पे ये पैसा चला गया. So 60 यहाँ चला गया, 32 यहाँ चला गया, तो टोटल हो गया 60 plus 32, that is 92x he has expended. So only 100 minus 92, that is 8%, 8x, we can say 8x he save. 8x मतलब 8% he save. तो क्वेश्चन आंसर will be the 8x.
राइट. सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द परसेंटेज. तो अभी हम परसेंटेज में एक छोटा सा वर्ड आता है रिमेनिंग, जो कि क्वेश्चन को गलत कर देता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं 35%, 25%, 35, 25, 60, 60 और 80. यदि किसी ने नॉर्मली इसको सॉल्व करने की कोशिश की, 60 प्लस 80 दैट इज 140%. 140% तो कोई क्वेश्चन होता नहीं है. द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट 100%. जब 100% की बात करेंगे तो क्वेश्चन ऐसा सॉल्व होगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is very interesting problem that is related with the Venn diagram. अब क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 is Venn related with the Venn diagram question. So Venn diagram के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम लोग आप डिस्कस करते हैं. Venn diagram it means जब भी कोई कंपोजिशन आए ऐसी, there are two items जिसमें कुछ कॉमन भी हो. तो क्वेश्चन है a certain examination 40% student failed in the mathematics and 30% fail in English, 10% fail in the both the examination. So the percent of the student who pass in both the subject. अब बात हो रही है फेल की. तो there are two type of subject. पहला सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स. तो हम मैथमेटिक्स का एक सर्कल बना लिया. दूसरा है इंग्लिश, तो इंग्लिश का हमने बना लिया दूसरा सर्कल. सो मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सेशन बन गया. तो 40% फेल इन द मैथमेटिक्स, तो ऊपर लिख दिया 40%. इंग्लिश में कितने फेल हो गए? 30% लोग इंग्लिश में फेल हो गए, तो 30% यहाँ हो गया. सो और अब देखा जाए 40% यदि मैथ्स में हो गए, 30% इंग्लिश में हो गए, तो दे आर सम स्टूडेंट 10% ऐसे लोग हैं जो दोनों में फेल होते हैं. इट मीन्स 10% विल बी हियर. 10% विल बी हियर. तो यदि हम लोग क्वेश्चन पे बात करें कि ओनली मैथमेटिक्स में कितने फेल हुए हैं, तो 10% इज अ कॉमन पार्ट. तो 40 minus 10 that is 30%. 30% is the only student those who are failed in the mathematics, and the 20%, but 30 minus 10 that is 20. 20% only student those who are failed in English. English में कितने फेल हुए उसकी बात हुई 20%. यदि हमने टोटल को ऐड कर दिया 30 plus 10 40, 40 plus 20 is 60. तो टोटल फेलियर स्टूडेंट हमने निकाले 30 plus 10 plus 20, टोटल मिला के हो गए 60. 60% ऐसे स्टूडेंट्स थे जो दोनों एग्जाम्स में फेल हो गए. तो हम मान के चलते हैं कि एवरीथिंग इज रिलेटेड विद दी 100. सो 100 में से यदि 60% माइनस हो गया तो 40% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि दोनों एग्जाम्स में पास होंगे. राइट. तो ऐसे 40% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो दोनों ही एग्जाम में पास होंगे. ये क्लैरिटी आ गई है. Before the coming on the second question, next question, I want to clear something about the Venn diagram. तो Venn diagram के लिए हम लोग फिर से बात करते हैं कि Venn diagram कैसे कैलकुलेट होता है. Then I'll come back to this question. Okay. So before solving the next question, I am going to explain something about the Venn diagram. Venn diagram क्या होता है? Venn diagram की बहुत सारी प्रॉब्लम परसेंटेज से रिलेटेड होती है. That's why today I am going to discuss something also about the Venn diagram. Venn diagram में भी दो टाइप के हो सकते हैं. मे भी दो चॉइसेस हो, या एक Venn diagram ऐसा भी हो सकता है इसमें 3 चॉइसेस हो. तो हम दोनों को एक साथ प्रेडिक्ट कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग बात डिस्कस करते हैं कि Venn diagram क्या होता है. वेन डायग्राम में सपोज करिए यदि सिर्फ 2 चॉइसेस हो तो वेन डायग्राम ऐसा बनेगा. यदि 3 चॉइसेस हो तो वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. राइट. अब ये वेन डायग्राम में क्या होता है? वेन डायग्राम में यदि हम देखें तो वेन डायग्राम का मतलब होता है कि जब भी हमें कोई भी कंपैरिजन विद चॉइसेस मिले तो उसको वेन डायग्राम से ही सॉल्व करते हैं. अब ये मॉडर्न अलजेब्रा का पार्ट है लेकिन परसेंटेज में कवर हो रहा है. इसका मतलब ये है कि आपको किसी परसेंटेज का रोल मॉडर्न अलजेब्रा में भी होता है. अब ये बात करते हैं. सपोज करो दिस इज ए सेट एंड दिस इज द बी सेट एंड हियर इज द ए सेट एंड बी सेट एंड सी सेट. सेट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. तो सेट की बात ये होती है कि यदि मान लीजिए कि एक सोसाइटी है उसमें 70% लोग लाइक टी, 70% people like tea and 40% people like coffee.
सो क्वेश्चन ये आपके सामने पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं, टी और कॉफ़ी। तो ये जो सेगमेंट है, ये जो रीजन है, इस रीजन में हम निकालेंगे दिस पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। सो द ए स्टैंड्स फॉर टी एंड बी स्टैंड्स फॉर कॉफ़ी। आ गया? सो एक हो गया टी और एक हो गया कॉफ़ी। अब हमें ये निकालना है कि 10 ये कौन से ऐसे परसेंट लोग हैं जो टी कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। जो टी कॉफ़ी दोनों पसंद करने की बात आएगी तो इसके लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला है। वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एवरीथिंग इज अबाउट 100, एवरीथिंग इज अबाउट 100। तो 70 ये हो गए, 40 ये हो गए, 70 40 110 और टोटल 100 है। इट मीन्स कि वो 100 में से 110 में से यदि हमने 100 माइनस कर लिया तो वो 10% जो लोग होंगे वो 100 माइनस कर लिया, जो 10% लोग होंगे वही इस सेगमेंट में आएंगे। ये तो जनरलाइज प्रॉब्लम दिख रही है। लेकिन जब बड़े नंबर्स होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं या नंबर्स कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उस टाइम के लिए हमें एक सेट थ्योरी का एक यूनियन रूल पढ़ना पड़ेगा। यूनियन रूल इज अबाउट दैट वे आई एम गोइंग टू डिस्कस n of A union B is equal to NA plus NB minus N A intersection B। अभी बात कर रहे थे कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए रिप्रेजेंट द पीपल हु लाइक टी, दैट इज 70%, एंड द 40% बी इज द पीपल हु लाइक कॉफी, दैट इज 40%। दोनों को ऐड कर दिया और ये जो कॉमन पीपल है दैट वी डोंट नो, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एक्स। और टोटल तो हमें पता है किसी भी नंबर्स का टोटल क्या होता है, 100x होता है, 100% होता है। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 10%, x की वैल्यू हुई 10%। सो 10% लोग ऐसे हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये इस वेन डायग्राम में पूछा जा सकता है कि ऐसे स्टूडेंट, ऐसे कैंडिडेट्स बताइए जो ओनली पसंद करते हो टी, जो ओनली टी पसंद करने वाले लोग होंगे। तो 10 यहाँ हो गया, 70 टोटल था, दैट मीन्स 60%। और ओनली कॉफ़ी की जब हम बात करेंगे तो 40 में से 10 गया, दैट इज 30%। क्लियर? तो जनरली स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो 70% को यहाँ लिख देते हैं और 40% को यहाँ लिख देते हैं, और ये कॉमन पार्ट भी उसके साथ ही दिखता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट कि 70 यदि टोटल रीजन ए बता रहा है, टी का रीजन बता रहा है, तो कॉमन माइनस टोटल दैट इज 60%, एंड 40 में से 10 गया 30%। तो वेन डायग्राम एग्जैक्ट ओनली टी लाइक पर्सन जो टी पसंद करते हैं वो 60, ओनली कॉफी पसंद करने वाले लोग हो गए 30, और जो दोनों पसंद करते हैं वो 10। ये वेन डायग्राम का पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नाउ वी कैन टॉक अबाउट जब ऐसी प्रॉब्लम हो कि तीन टाइप के चॉइसेस हो आपके पास में। टी कॉफी की तो चॉइसेस थी, उसके साथ एक चॉइस और आ सकती है, सपोज कि सम पीपल आर लाइक मिल्क। तो उसके लिए हमें ये 2 सर्कल वाला डायग्राम नहीं लगेगा, वहां पे 3 सर्कल वाला डायग्राम लगेगा, और उसका डेटा कुछ इस टाइप से होगा दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। हाँ, सपोज करिए एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में कुछ बच्चे रहते हैं। उन बच्चों में से कुछ बच्चे जो हैं वो टी पसंद करते हैं, दैट रिप्रेजेंट पहला सर्कल। कुछ लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और तीसरा पसंद करते हैं मिल्क। जो ऐसे लोग हैं जो मिल्क पसंद करते हैं, तीनों के आपके परसेंटेज आपको क्लियरली दिए हुए हैं। सपोज करिए इन सोसाइटी 50% पीपल लाइक टी एंड 40% people like coffee and 30% people like milk. Clear?
अब इस क्वेश्चन को यदि हमने समझने से पहले ही समझते हैं कि टी पसंद करने वाले 50% लोग हैं, कॉफ़ी पसंद करने वाले 40% लोग हैं और मिल्क पसंद करने वाले 30% लोग हैं। अब हमने सभी का देखा कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं। जब दोनों पसंद करने वाले लोग हैं वो इस रीजन में आएंगे, और जो कॉफ़ी एंड मिल्क पसंद करते हैं वो इस रीजन में आएंगे, दिस रीजन। एंड जो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि टी एंड मिल्क दोनों ही पसंद करते हो वो इस रीजन में आएंगे। तो इस तरीके से इन सारे सेगमेंट्स को हम क्वालिफाई कर सकते हैं, और क्वालिफाई करने के लिए एक आपको यूनियन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देन फॉर्मूला इज यूनियन एन यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी। फॉर्मूला इज एन ए यूनियन बी यूनियन सी। इट मीन्स हम बात करेंगे एन A plus NB plus NC minus N of A intersection B, A intersection B minus N of B intersection C minus N A intersection C, और प्लस N of A intersection B intersection C। हाँ, आप बोलेंगे कि ये भाई आपने Na तो कर लिया, NB कर लिया, NC कर लिया, दोनों का जो कॉमन रीजन है वो सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, ये तीनों कर लिया, लास्ट में हमने क्या प्लस कर दिया, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यदि हमने ये प्लस कर दिया A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ये पूरे साइकिल का किया एक बार, ओके, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो देखा ये कॉमन आया, इसको माइनस कर लिया, ये कॉमन आया, ये माइनस कर लिया, ये कॉमन आया, ये माइनस कर लिया। लेकिन ये वाला जो सेगमेंट है ये बार बार तीनों बार माइनस हो गया है, तो इट मीन्स ये वन टाइम एडिशनल माइनस हो गया है, तो इसको हमने एक बार इसको ऐड कर लिया। तो इस फॉर्मूले के बेस पे Na की वैल्यूज दी होंगी, आप Na की वैल्यू पुट कर दो, NB की वैल्यू पुट कर दो, NC की वैल्यू पुट कर दो, A इंटरसेक्शन B AB की कॉमन वैल्यू पुट कर दो, BC की कॉमन वैल्यू पुट कर दो, एंड CA की काउंट कर लो, where टी विल बी A, कॉफी विल बी B एंड मिल्क विल बी C। ये रिप्रेजेंटेशन होती है। ये वेन डायग्राम का बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ कम ऑन टू दी अगेन आर परसेंटेज प्रॉब्लम्स। तो हम परसेंटेज प्रॉब्लम्स में करने वाले थे, तो परसेंटेज प्रॉब्लम्स अगेन वापस आती हैं, और परसेंटेज प्रॉब्लम में हम आज क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या डिस्कशन है? क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल अबाउट which of the following multipliers will cause the numbers to be increased by 25.3%. So which of the following multiplier will cause the number to be increased 25.3%? अब आपके पास चार ऑप्शन है, 12.53, 125.3 एंड 1.253 एंड 1253। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को यदि हम सॉल्व करना चाहते हैं, सब इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा, बहुत ही लिटरली समझना पड़ेगा। परसेंटेज में दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, दो लोग हैं। यदि ए के पास 1000 रुपए हैं और बी के पास 2000 रुपए हैं, तो इसकी दो इंटरप्रिटेशन बनती है, इसकी दो इंटरप्रिटेशन बनती है। इफ बी सेज कि मेरे पास ए से 100 टाइम्स पैसा ज्यादा है, सो ओके इज राइट आंसर। हाँ, इसके पास 1000 है, इसके पास 2000, इससे इसका 100% ज्यादा है। बट एक अलग डेफिनेशन ये बनती है, बी कैन से आई हैव अ 200% ऑफ ए, दैट इज राइट कि बी के पास ए का 200% है। पहला है कि कंपैरिजन, जो मैंने आपको चेंज परसेंट का बताया था, चेंज कितना है, तो चेंज के लिए हमने क्या करना था, 2000 में से 1000 को माइनस कर दिया, 1000 से डिवाइड किया, 100 से किया मल्टीप्लाई, इट मींस 100% आ गया। दूसरी तरीके से ये होता है कि एक का अमाउंट दूसरे से हम जब कंपेयर करते हैं तो 1000 से 2000 है, मतलब इसके पास 100% पैसा है और इसके पास 200% पैसा है, राइट।
सो इस तरीके से ये हम 100% एंड 200% का कंपैरिजन कर सकते हैं. तो माय क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लायर विल कॉज द नंबर ऑफ इंक्रीज बाय 25.3%. इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? दैट इज 1.253. इसका कैसे कह सकते हैं? क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि यदि हमने बोला 10% बढ़ाया, किसी के पास 100% कुछ मनी था, 100x था, और उसका यदि हमने 10% बढ़ाया तो क्या हो जाएगा? इट बिकम्स 110x. एक तो ये कंपैरिजन चलता है जब 100 से हम कंपेयर करते हैं, लेकिन जब दूसरी तरह का कंपैरिजन चलता है तो दूसरी तरह का कंपैरिजन कैसे होता है? यदि हमने कई बार हम क्वेश्चंस में ऐसे मानते हैं कि किसी के पास x मनी है तो दैट इज 1x, और उसके बाद दूसरे के पास यदि 10% इंक्रीज करना है तो 1.10x कर लेते हैं उसका, और यदि 25% करना है तो 1.25 कर देते हैं. राइट और इस क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम बात करें तो 25.3% बढ़ाना है तो 1.2.5x ये कर देंगे. तो आंसर इज 1.253. दिस इज द आंसर. जब भी कोई इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो इंक्रीमेंट हम इस तरीके से करते हैं. मतलब जब भी हम 100 से कंपैरिजन करते हैं तो 100 का 110 और 100 का 120, 130, 140 ऐसे कंपैरिजन होता है. लेकिन जब 1 मान के चलते हैं तो 1.10, 1.25, 1.253 इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं. आफ्टर हैविंग द स्पेंड ऑफ 35% ऑफ मनी ऑन द मशीनरी, 40% ऑन द रॉ मटेरियल, 10% ऑन द स्टाफ पर्सन, ही लेफ्ट 60,000. अब इसमें क्या हुआ कि टोटल आपको नहीं बताया है एंड टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन द मशीनरी एंड रॉ मटेरियल निकालना है आपको. इसमें कोई भी टोटल अमाउंट नहीं दिया है, ये आपको रिमेनिंग अमाउंट के बारे में बताया गया है. तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा? रिमेनिंग अमाउंट के बारे में हम जब बात करते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट का मतलब कि बात करें तो टोटल सपोज करिए अगेन हम बात करेंगे 100x is total money. 100x में से यदि एग्जामिन 35% एग्जामिन द फेल इन जीके, सॉरी 35% मनी स्पेंड ऑन मशीनरी, सो 35 हो गया आपका, 35x हो गया आपका मशीनरी पे खर्च, 35% हो गया आपका मशीनरी पे खर्च, एंड उसके बाद 40% ऑन द रॉ मटेरियल, तो 40x हो गया आपका रॉ मटेरियल के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर हो गया RM. उसके बाद 10% ऑन द स्टाफ सैलरी, 10% 10x मतलब हो गया आपका स्टाफ सैलरी के ऊपर, स्टाफ पे खर्च हो गया. अब इसकी कहानी आती है कि द पर्सन लेफ्ट विद 60,000. तो टोटल एक्सपेंड यदि हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे तो 35, 40 एंड 10, 85% जो पैसा है वो ऑलरेडी खर्च हो चुका है. तो 85% यदि खर्च हो चुका है, अब ही इज हैविंग कितना? यदि परसेंटेज के बारे में बात करेंगे तो 15x उसके पास क्या हुआ? रिमेनिंग अमाउंट बचा. 15x रिमेनिंग अमाउंट है. अब 15x इज इक्वल टू 60,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. 15x इज इक्वल टू 60,000 दिया हुआ है. अब 15x इज इक्वल टू 60,000 है, इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 बात कर रहे हैं. तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन द मशीनरी एंड रॉ मटेरियल. मशीनरी और रॉ मटेरियल पे टोटल पैसा कितना खर्च होगा? मशीनरी और रॉ मटेरियल का मिलाया तो 75% हो गया, 40 एंड 35, 40 एंड 35, दैट इज 75. So 15x is equal to is this much. So 75x is equal to how much? यूनिटरी मेथड लगा दिया, 15x नीचे चला गया और 75x ऊपर चला गया, इनटू 60,000 कर दिया. राइट सो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 15x एंड देन 4x, 15 5x 5 टाइम्स हो गया, 60 इंटू 5, 60 इंटू 5 इट मीन्स 3 लाख. तो आंसर विल बी 3 लाख. 1 2 3 4 5. तो आंसर विल बी दिस वन. राइट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व. तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिया. अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6. वी हैव इट स्किप्ड. तो अब फिर से करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को करते हैं. 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं. पहले थोड़ा सा इसको वाइड करते हैं बिकॉज इसके फॉन्ट छोटे हैं. ओ माय गॉड. The question is, in the examination 35% candidate failed in the subject and 42% failed in other subject.
while the 15% fail in the both the subjects. If 2500 candidate appeared in the examination, how many student fail in either the subject but not in both, either the subject. अब वो ये कहानी है कि जैसे टी कॉफ़ी का जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि कुछ लोग टी पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो ओनली टी एंड ओनली कॉफ़ी पीने वाले लोग क्या है, जो वहाँ पे आंसर था, सेम क्वेश्चन का आंसर अब यहाँ पे बनेगा. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि कैसे करेंगे. Okay, so question is 35% candidate failed in the subject, first subject. तो दो टाइप के सब्जेक्ट बन गए हैं, तो हमने उसके दो सर्कल बना दिए. दो सर्कल बनाए, 35% पहले वाले में फेल हो गए, उसके बाद 42% अनदर सब्जेक्ट में फेल हो गए, 42%. ओके, सो फेल अनदर सब्जेक्ट, वाइल 15% इन द बोथ. तो मैंने बताया था आपको, बोथ वाले को हमने बीच में रिप्रेजेंट कर दिया 15%. सो अब टोटल देखा जाए तो 2500 कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जाम, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन दी either the both the subject. अब हम लोग बात करेंगे 15%. तो आप कैलकुलेट करें तो 35 में से 15 गया, दैट इज 20%. ओनली फेल इन फर्स्ट सब्जेक्ट. 42 minus 15, that is 17%. (42 minus 15) 27%. Sorry. Yeah, so 27% is fail in the other subject. तो क्वेश्चन इज, हमारा क्वेश्चन ये था कि यदि 2500% appeared in the examination, how many student fail in either but not both. Either मतलब हमारा जो क्वेश्चन होगा 20% प्लस 27%, मतलब हो गया 47% जो होंगे स्टूडेंट्स वो होंगे either failed in the individual subject. तो अब हमारा क्वेश्चन है कि यदि टोटल हमें 2500 स्टूडेंट अपीयर हुए थे 2500, तो 2500 का यदि मैंने 47% निकाल दिया तो इट मीन्स इसका आंसर आ गया. तो 47% निकालने के लिए क्या करेंगे, 47/100 इंटू 2500. अब ये 0 कट गया और 47 इंटू 25, 47 इंटू 25 कैलकुलेट कर लेते हैं. 47 इंटू 25 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी, हम कैलकुलेट करते हैं इसको 25 इंटू 7 को, तो 25 इंटू 7 जब कैलकुलेट होगा, 25 इंटू 47 कैलकुलेट होता है, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 और 3, 7 5 जा 35, 3 40, 14 3 17, क्रॉस 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8 10, 5 7 1 1 1175, 1175. So 1175 will be a answer. Thank you so much. So this is the first part of the percentage problems. The rest of the problem we will discuss in the second part. So thank you students. You may comment on this video. If you are facing any different kind of the problem, you can comment on this video so I can resolve your problems on that basis. Thank you so much.